Hello friends, how are you? In our last class we started to discuss about the conservation of biodiversity, and we discussed that the balancing and for the balancing and the proper functioning of the biosphere and the ecosystem there is a need of biodiversity, but due to the human activities the biodiversity is continuously destroying or decreasing. And then we started about the efforts which are done and which are doing in the sector of in the part of biodiversity conservation. And as we discussed in the last class that there are three levels of biodiversity conservations, that is international levels, sorry, that is only two levels, that is international levels and national level. And in national level there are again three parts: at the central level, at the state level, and the local level. We will discuss in that in the national segment of biodiversity conservation. Okay, and we also discuss about some of the international efforts in which we studied that in the 1968 an organization called IUCN, an organization which is called IUCN, which is a part of United Nations, was formed. And this mainly work for the conservation of biodiversity and nature. Okay, and we also discuss about the red data book. We discussed that after the extensive worldwide study of the 4 years about the biodiversity, that means plant and animals, IUCN published a book called Red Data Book. IUCN published a book called Red Data Book. This book enlists the disappearing species, their habitat, and their present number. Okay, in the last class we discussed about that. Okay, now in today's class I am starting the classification of organisms by IUCN, and this classification we already studied in the chapter number 12 also. The same classification is again here. So this is a very important question because this is topic or this question is it in two chapters. In two chapters, that means there are double chances to the which can that teacher can ask about it. Okay, so again we started. IUCN has divided the organisms of the world into 5 categories. IUCN ने organisms को 5 categories के अंदर divide किया है. Which one? Extinct, second is endangered, third is vulnerable, fourth is rare, fifth is insufficiently non-species. Okay, now let me discuss one by one about that. First one is extinct species. First one is extinct species. Okay, species which are no longer found anywhere in the world are called extinct species. वो स्पीसीज जो आज वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती, दैट मीन्स वो एलिमिनेट हो चुकी है नेचर में, अब उसका कोई भी लिविंग मेंबर जिन स्पीसीज का नहीं है उन्हें कहा जाता है दैट आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज. क्या बोला जाएगा उन्हें? एक्सटिंक्ट स्पीसीज. व्हाट इट? फॉर एग्जांपल डोडो बर्ड, सेकंड इज डायनासोर्स, third is rhinia plant, etc. Okay, so that means those species which are not available now, they are not available in nature, maybe present, they are present in the past, but at present time there is no living member of that species are called extinct species. Got it? Second are endangered species. Second one are endangered species, species which are on the verge of extinction and if not protected then will extinct soon are called endangered species. वो species जिनके जो आज वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन यानी कि खत्म होने की कगार पर है, मतलब there are very few members, there are only few members of that. For example, that is Godawan bird,
Asiatic tiger, Asiatic lion, one horn rhino, that are very endangered species because the members of these species are very rare and in limited amount. So species which are on the verge of extinction वो species जो खत्म होने की कगार पर हैं, and if not protected then will extinct soon, और जिन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया गया, कंजर्व नहीं किया गया, तो जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, दुनिया से, वर्ल्ड से एलिमिनेट हो जाएंगी. दैट आर कॉल्ड endangered species. Got it? For example, Godawan, that is Great Indian Bustard. We also discussed about the Godawan, that it is the state bird of Rajasthan, so that is important for us. Second is tiger, leopard, sarpganda, and about that more we discussed that jingo biloba, one horn rhino, etc. comes in the category of endangered species. Got it? Third is vulnerable species. Third one is vulnerable species. Okay, those species whose population is decreasing rapidly and soon expected to become an endangered species are called vulnerable species. वो स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ कम हो रही है, जिनकी पॉपुलेशन बहुत शार्पली डिक्रीज हो रही है, और ये माना जा रहा है, मतलब ये अपन बोल सकते हैं एक थिंकिंग है कि वो जल्द ही इंडेंजर्ड कैटेगरी में आने वाली है. एट प्रेजेंट टाइम दे आर सफिशिएंट, बट द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीसीज इज डिक्रीजिंग so sharply that in future they will becomes endangered, and if they will not protect them, then they can also eliminate from the nature. Okay, so that kind of species, वो species जिनकी population बहुत तेजी के साथ कम हो रही है और जिनको अगर प्रोटेक्शन नहीं किया गया तो वो जल्दी ही इंडेंजर्ड में आ सकती हैं और एलिमिनेट भी हो सकती हैं, उन्हें बोला जाता है वल्नरेबल स्पीसीज. फॉर एग्जांपल याक, नीलगिरी, थार, रेड पांडा, कोबरा, ब्लैक बग, एटसेट्रा. तहर, दैट इज तहर. ओके, रेड पांडा, कोबरा, ब्लैक बग, एटसेट्रा, दैट्स कम इन द कैटेगरी ऑफ vulnerable species. Got it? Fourth one is rare species. Fourth one is rare species. Those species which are limited to a particular geographical area or whose number is very less and can become endangered in near future are called rare species. वो स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, वर्ल्ड के पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में लिमिटेड हैं, या जिनके नंबर बहुत ज़्यादा कम हैं, क्योंकि वर्ल्ड के पर्टिकुलर एरिया में हैं, लिमिटेड एरिया में अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली उनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम होगी. ओके, तो दोज स्पीसीज वो आर लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर एरिया, जो एक पर्टिकुलर एरिया में हैं, जियोग्राफिकल कंडीशंस, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल कंडीशंस में है, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, एंड कैन बिकम इंडेंजर्ड इन फ्यूचर, और जिनको नियर फ्यूचर में जो किस में आ सकती हैं, इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आ सकती हैं. दैट आर कॉल्ड रेयर स्पीसीज. उन्हें क्या बोला जाएगा? रेयर स्पीसीज. गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल रेड वुल्फ, हेनियान गिब्बन, जाइंट पांडा, snow leopard, etc. Snow leopard, etc. These are particular. One more example, if you consider for the Indian, then Nilgiri Tahar, that also comes in the category, and the one horn rhino, that is also. So that are come in the category of rare species. Okay. Fourth one is insufficiently non-species. Fourth one is इनसफिशिएंटली नॉन स्पीसीज, यानी कि जिनके बारे में हम इतना ज़्यादा डिटेल हमारे पास अवेलेबल नहीं है. दोज स्पीसीज अबाउट विच सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, दोज स्पीसीज अबाउट विच सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आर नॉट known, hence
they cannot be kept in a particular category are called insufficiently known species. वो स्पीसीज जिनके बारे में हमें पर्टिकुलरली, जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, यहाँ पर पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से है। यहाँ पे मतलब किससे? पॉपुलेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिनके बारे में हमें पर्टिकुलरली पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसलिए जिसको हम किसी भी कैटेगरी के ऊपर जो 4 अपन ने डिस्कस की है उनमें से किसी भी कैटेगरी में अपन उसको प्लेस नहीं कर पाए हैं, दैट कम इन द कैटेगरी ऑफ insufficiently known species. So that was the classification of organisms by IUCN in the Red Data book. That was the first international step about the conservation, because the species which comes in the category of endangered, vulnerable or rare, then the governments are now forced to protect them. So that was a first step about the biodiversity conservation at international level. Okay, second one was about the CITES. About the CITES. Now let me discuss what is CITES. In the year 1973, in the year 1973, IUCN organized a convention called Convention on International Trade in Endangered Species. 1973 के अंदर IUCN ने एक कन्वेंशन को सिंपल लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं सम्मेलन, जो वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज हैं उनकी मीटिंग, किसी इंटरनेशनल मैटर के ऊपर जो कंट्रीज की जो मीटिंग होती है उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं अपन कन्वेंशन। 1973 ने IUCN ने कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, देन CITES। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो इंडेंजर्ड स्पीसीज का जो ट्रेड है यानी कि जो बिजनेस होता है उसके लिए ये कन्वेंशन यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था, ये कन्वेंशन हुआ था, इन विच वेरियस कंट्रीज agreed to control the international trade of endangered species. इस कन्वेंशन में जो डिफरेंट कंट्रीज जो जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो जिन कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, दे वर एग्रीड, वो इस चीज पर एग्री हुई थी या उनके बीच में एक एग्रीमेंट बना था कि जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग है इंडेंजर्ड स्पीसीज को, उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। या अपन बोल सकते हैं उन्होंने उसके जो इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग है इंडेंजर्ड स्पीसीज को, उसको कंट्रोल करने के लिए अपना एक तरीके से यस किया था उन्होंने। दैट मीन्स दे एग्रीड टू कंट्रोल, वो एग्री हुए थे उस चीज को कंट्रोल करने के पर्पज से। गॉट इट? तो दैट इज CITES, which was this one more effort of biodiversity conservation at international level. Okay, the third, which according to our syllabus, that is the third, that is CBD, Convention on Biodiversity. During the Earth Convention, Rio de Janeiro in 1992 Brazil, that was in Brazil. Okay, during the Earth Convention, Rio de Janeiro, Brazil in 1992, the Biodiversity Treaty, which is called CBD, that is CBD, Convention on Biodiversity, Convention on Biodiversity. Got it? So that is the full form of CBD. Came into existence and it has been accepted by 193 countries. रियो डी जेनेरो के अंदर जो अर्थ कन्वेंशन हुआ था, अगर मैं थोड़ा सा इसकी हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ व्यू से अपन बात करें तो 1992 के अंदर जो रियो डी जेनेरो के अंदर जो अर्थ कन्वेंशन हुआ था, एनवायरमेंट से रिलेटेड अभी तक का सबसे बड़ा वो कन्वेंशन है।
जिसमें वर्ल्ड की जो क्लाइमेटिक जो चेंजेस हो रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशंस, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, उनको कंसिडर करने के लिए एक बहुत लॉन्ग मीटिंग वहाँ पर हुई थी। उसके बाद पेरिस कन्वेंशन आते हैं। तो ये कुछ गिने चुने कन्वेंशंस हैं जो कि सीरियसली जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, नेचर कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, इन सेक्टर्स में पर्टिकुलरली उन्होंने वर्क किया था। गॉट इट? तो इस अर्थ कन्वेंशन के दौरान सीबीडी जो ट्रीटी है बायोडाइवर्सिटी की, वो एग्जिस्टेंस में आई, जिसको अभी तक वर्ल्ड के 193 कंट्रीज उसको एक्सेप्ट कर चुकी हैं। हाउ मच? 193 कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन से बिलोंग्ड हैं, जिनको रिकमेंडेशन दे रखा है यूसीएन ने, यूनाइटेड नेशन ने, उन सभी ने इस ट्रीटी को एक्सेप्ट किया है। बाय दिस ट्रीटी all the nation expressed their commitment to protect the biodiversity. इस ट्रीटी में जितने भी नेशंस हैं, जो 193 कंट्रीज हैं, उन्होंने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में अपना कमिटमेंट शो किया था। अपना कमिटमेंट यानी कि एक तरीके से अपन बोल सकते हैं एक पॉजिटिव अप्रोच उन्होंने उस चीज के लिए शो की। यस, वी विल डू एट आवर नेशनल लेवल एंड ऑल्सो स्टेट और लोकल लेवल्स अबाउट द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। गॉट इट? क्लियर? नाउ that is the international efforts. So if the questions comes that write the international efforts, then you have to start from the IUCN, when it is constructed, what is the role of, and then red data book, the classification of organisms, then about the CITES, and then we have to write about the CBD. That is the international efforts of biodiversity conservation according to our syllabus, because there is no limit of the description, because there are numerous agreements between the countries and between the between the countries and at the international levels united by the United Nations, and which enforcement are going in the worldwide about the biodiversity conservation. But as per our syllabus, we have to mention about these three: IUCN plus red data book, that is first, second is CITES, and third one is CBD. Okay, now let me move to the national efforts of biodiversity conservation. अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के नेशनल एफर्ट्स को अपन कंसिडर करते हैं। गॉट इट? द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002. दिस इज द एक्ट according to which the biodiversity conservation takes place in India. So you have to memorize this act, that is Biodiversity Act 2002. इंडिया के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी के लिए कंजर्वेशन के लिए जो एक्ट जो मेन जो बना हुआ है वो कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, टू शो द कमिटमेंट टुवर्ड द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन बायोडाइवर्सिटी, दैट इज सीबीडी. सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2002 के अंदर बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाया ताकि वो जो इंटरनेशनल ट्रीटी है बायोडाइवर्सिटी की, सीबीडी, उसकी तरफ वो अपना कमिटमेंट शो कर सकी, क्योंकि वहां पर सभी कंट्रीज ने अपना अपना कमिटमेंट शो किया था कि यस, वी विल स्टार्ट द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड फॉर द दे ऑल द कंट्रीज मेक देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स. Similarly, India also make a law, that is Act about the biodiversity conservation, which is called Biodiversity Act 2002. Got it? This act has three main objectives. इस act के तीन main objectives हैं. First, protection of biodiversity. Biodiversity को protect करना. Second, sustainable use of biodiversity. That means biodiversity का इस तरीके से use ताकि वो long duration तक हमें available रहे. और कोई भी चीज अवेलेबल लॉन्ग ड्यूरेशन रहती है, यूज प्लस उसका कंजर्वेशन, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल. सो दैट इज सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी. थर्ड वन इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, दैट इज ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री. जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं या जो बायोडाइवर्सिटी के जो बेनिफिट्स हैं,
that means food, medicines, wood, natural resources. Okay, it's not the natural resources, wood, that is a sorry, the minerals, that is not a non-living things. The biodiversity products, that is food, medicines, and different kind of other plant and animal products, will distribute equally. That means it's not here they are considering that the profits or benefits of the biodiversity should be available for all the needy peoples. Got it? मतलब बायोडाइवर्सिटी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि सभी लोगों को अवेलेबल रहे कंट्री में. There is a provision of the 3-tier or 3-level organization in Biodiversity Act 2002. Biodiversity Act 2002 के अंदर 3 tier या 3 levels organization की कंसिडरेशन की बात की गई है. नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल डिस्ट्रिक्ट या लोकल लेवल पर. नेशनल लेवल पर बनाने की बात है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, दैट इज NBA. NBA, that is full form is National Biodiversity Authority. Okay. Second, at state level, that is biodiversity boards, and at local level, that is biodiversity management committees. So these are the 3 layers organized, that is the 3 layers or 3 levels or 3 tiers organization of Biodiversity Act, or we can say the biodiversity working of India, conservation working of India. Okay. Now one more international effort about the biodiversity, that is National Green Tribunal, NGT. That is the NGT. Okay. National Green Tribunal or NGT has been formed on 2nd June 2010 with an objective to bring the laws of environment, forest, water, air and biodiversity into the same lap. National Green Tribunal 2 जून 2010 को फॉर्म हुआ था, बना था एक ऑब्जेक्टिव, एक विचार या एक उद्देश्य के लिए, जिसमें जितने भी लॉज हैं जो एनवायरनमेंट से, फॉरेस्ट से, वाटर, एयर और बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हुए हों, उन सभी को एक साथ लाया जा सके या एक ही दायरे में उनको लाया जा सके. दे कम्स टुगेदर. गॉट इट? नाउ the appeal under these laws, that means the laws related with the environment, laws related with the forest, water, air, biodiversity, all of these under these laws are filled in NGT but not in the High Court, so that the disputes related to these matter can resolve much faster. आज के टाइम पर जो ऊपर अपन ने जो बात की, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाटर, एयर और बायोडाइवर्सिटी, उनसे जुड़े हुए जो लॉज हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी अपील करनी हो कि कहीं पर गवर्नमेंट्स ने या जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का या फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाटर, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, इनसे जुड़े हुए किसी भी लॉज को अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया है, उसको ब्रेकअप किया है और उस पर लीगल एक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो वो सभी, उसके लिए जो अपील की जाती है वो एनजीटी में होती है, ना कि हाई कोर्ट में. पहले के टाइम पर जब ये एनजीटी नहीं बना था, तब ये केसेस जो थे वो हाई कोर्ट डील करता था, लेकिन अब उन केसेस को कौन डील करता है? एनजीटी. कौन करेगा? एनजीटी. ताकि ऐसे डिस्प्यूट्स को मच फास्टर, ज्यादा स्पीड के साथ उन मैटर्स को रिजॉल्व किया जा सके, सॉल्व कर सके. जो भी ये जो डिस्प्यूट्स हैं उनका रिजॉल्व जो है वो फास्ट स्पीड के साथ हो सके. और ये ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीटी, ये पर्टिकुलरली बायोडाइवर्सिटी या जो एनवायरनमेंट या फॉरेस्ट, वाटर, इन्हीं से रिलेटेड मैटर्स को कंसिडर करता है. ये बनाया ही इन्हीं मैटर्स के कंसिडरेशन के लिए है. गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो इसमें कोई फैमिली डिस्प्यूट्स या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स वगैरह नहीं जाते. इसमें पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट या फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज जो वाटर, एयर है, उनसे रिलेटेड मैटर्स जाते हैं. और उन केसेस के अगेंस्ट जो एनजीटी है,
या ये गवर्नमेंट्स या जो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने उन लॉज को फॉलो नहीं किया उनके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लेता है, जिसमें उन पर कोई पर्टिकुलर फाइन या पर्टिकुलर कोई प्रिजर्मेंट वगैरह की प्रोसीजर्स वहां पर फॉलो हो. Got it? The headquarter of NGT is in Bhopal. That is very important question. Where is the headquarter of NGT? That is in Bhopal. भोपाल के अंदर नेशनल लेवल का एनजीटी का हेडक्वार्टर बना हुआ, बाकी स्टेट लेवल्स पर अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. गॉट इट? द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स दोज एफर्ट्स which are made to protect the genes, species, habitat and ecosystem. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब उन एफर्ट से है जिनसे किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के जीन्स को या जो उसके जो स्पीसीज हैं उसको या उनके हैबिटेट को या इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए, उनका प्रोटेक्शन हो. तो इसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सिंपल मीन्स में देयर आर टू वेज टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के टू लेवल्स हैं या टू टाइप्स में ये किया जाता है. फर्स्ट वन इज इन सिटू. इन सिटू कंडीशंस, पर्टिकुलरली इसको कई बार लोग इन सिटू भी बोलते हैं, कई बार इसको सिचुएशन से बना हुआ है ये, दैट इज सिचुएशन. तो वहां से वर्ड बना हुआ है, तो दैट इज सिटू या सिचू भी बोलते हैं इसको. ओके, तो इन सिटू कंजर्वेशन. इन सिटू कंजर्वेशन में एक सिंपल वर्ड में बोलूं तो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज जहां है, यानी कि जिस नेचुरल हैबिटेट में है, उसे वहीं पर प्रोटेक्ट किया जाएगा. मतलब फॉरेस्ट जो जिस पर्टिकुलर एरियाज में है वहीं पर उसको कंजर्वेशन किया जाता है. हाँ, मेंटेन ह्यूमंस के द्वारा रखा जाएगा. मेंटेनेंस जो वर्किंग है वो तो ह्यूमंस की होगी, लेकिन कंजर्वेशन कहां पे होगा? नेचुरल हैबिटेट में. ओके, द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच इज मेंटेन्ड बाय ह्यूमंस इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन. वो कंजर्वेशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही मेंटेन, नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व किया जाता है, और वो मैनेज कौन करता है? ह्यूमंस. उसे बोला जाता है इन सिटू कंजर्वेशन. The favorable condition and the safety are provided to endangered species in their own natural habitat. इस टाइप की कंजर्वेशन में जो फेवरेबल कंडीशंस हैं उनके सर्वाइवल की, उनके रिप्रोडक्शन की, उनके सेफ्टी की जो कंडीशंस हैं वो उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोवाइड की जाती है. गॉट इट? फॉर दिस बायोस्फीयर्स, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स आर मेड और एस्टेब्लिश्ड. इसके लिए या इन सिटू कंजर्वेशन में बायोस्फीयर्स, नेशनल पार्क्स या सेंचुरीज या जो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं वो बनाए जाते हैं, वो बनाए गए हैं. एट प्रेजेंट 14 बायोस्फीयर्स, 99 नेशनल पार्क्स, 523 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 47 प्रोटेक्टेड एरियाज हैज बीन फॉर्म्ड इन इंडिया. इतने ये प्रोटेक्टिव, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की स्ट्रक्चर्स इंडिया में बनाई जा चुकी हैं. गॉट इट? दीज प्रोटेक्टिव एरियाज कवर 1,50,745 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ कंट्री. ये जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बनाई गई स्ट्रक्चर्स हैं, ये इतने स्ट्रक्चर्स को कवर अप करती हैं, जो कि इंडिया की टोटल जियोग्राफिकल लैंड का कितना है? 4.83%. ओके, तो ये था, दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बाय इन सिटू. सेकेंड इज एक्स सिटू. अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज उसका नेचुरल कंडीशन में, जिस पर्टिकुलर कंडीशंस में पाई जाती हैं उसमें उसका कंजर्वेशन पॉसिबल ना हो, उस नेचुरल कंडीशन में अगर उसका कंजर्वेशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसे आर्टिफिशियल कंडीशंस में उसको कंजर्व किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, उसके फ्यू मेंबर्स ही बची हैं, 10 to 15 मेंबर्स, तो उनको वाइल्ड कंडीशंस में छोड़ना बहुत रिस्की है. मे बी पॉसिबल कोई उनको प्रेडिटर खा जाए, मे बी पॉसिबल किसी डिजीज से उनकी डेथ हो जाए, मे बी पॉसिबल कोई नेचुरल क्लाइमेटीज, कोई भी नेचुरल डिजास्टर उनके साथ हो सकता है,
रेन वाटर, फ्लड, ड्रॉट, तो उस कंडीशन में वो एलिमिनेट हो सकते हैं। तो बहुत लिमिटेड रिसोर्स वो अवेलेबल हो हैं, इसलिए उनको आर्टिफिशियल कंडीशंस में, जहाँ पर उनको पर्टिकुलरली कंट्रोल्ड सिचुएशंस में उनको रखा जाता है ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ सके प्लस वो प्रोटेक्ट रह सके। तो इन दिस टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड द इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिफिशियल हैबिटेट। तो उनको आर्टिफिशियल हैबिटेट्स में उनको कंजर्व किया जाता है। गॉट इट? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट स्पीसीज बॉटनिकल गार्डन्स, शीड बैंक, शीड बैंक्स का मतलब जहां पर पर्टिकुलर स्पीसीज के शीड्स को स्टोर रखा जाता है। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज, पर्टिकुलरली प्लांट की किसी टिश्यू से पूरा प्लांट डेवलप करना, एटसेट्रा हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, ये बनाई गई हैं प्लांट्स के एक्सेटू कंजर्वेशन के लिए। जू, बर्ड हाउसेज, एक्वेरियम एटसेट्रा हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल स्पीसीज, ये बनाए गए हैं एनिमल स्पीसीज के। प्लांट्स जो हैं उनके लिए बॉटनिकल गार्डन, शीड बैंक्स, टिश्यू कल्चर फॉर द एनिमल्स, दैट इज जू, बर्ड हाउसेज, एक्वेरियम एटसेट्रा आर एस्टेब्लिश्ड फॉर देयर प्रोटेक्शन। And you know that in all of that the conditions are totally human controlled. Their food, their temperature, the humidity, vaccinations, all of these are controlled by humans so that they can protect them. Now, other than these structures, various other various other structures and methods are adopted for the conservation. For example, the germplasm, that means seed, fruit, polar grains of the plants, spores are also plants, sperms, ovum, that for animals of endangered species are protected by cryopreservation and slow culture techniques. जो जर्म प्लाज्म है, यानी कि जिनसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, जो उसके रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होती है, जो शीड्स हो सकते हैं, फ्रूट हो सकते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं प्लांट्स में, स्पोर्स भी प्लांट्स में है, स्पर्म्स और ओवम, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, इनको इंडेंजर्ड स्पीसीज के इन जर्म्स प्लाज्म को क्रायो प्रिजर्वेशन, यानी कि बहुत लो टेम्परेचर पर इनका कंजर्वेशन किया जाता है। इसके अलावा स्लो कल्चर टेक्निक, दैट टेक्निक्स आर यूज्ड। द जीन्स ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज आर आल्सो प्रिजर्व इन द जीन बैंक्स इन देयर जर्मिनेशन स्टेजेस। इसके अलावा जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके जीन्स को जीन बैंक्स में जर्मिनेशन स्टेज, यानी कि उनमें कैपेबल होना चाहिए, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो उन कंडीशंस में उनको प्रिजर्व रखा जाता है ताकि इन फ्यूचर अगर किसी भी रीजन से वो पर्टिकुलर स्पीसीज एलिमिनेट होती है, नेचर से एक्सटिंक्ट हो जाए, तो बाय यूजिंग द शीड्स, फ्रूट, पोलन ग्रेन्स फॉर द प्लांट, sperms, ovum from the animals or from the genes, we can again form that particular species. Okay, so that are the ex situ conservation method. Okay, now after chapter number 19 is finished, okay, and from the next class I will start the chapter number 17, which is also a theoretical and very easy chapter. Got it? Hope you like it. Thank you.